Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से हम हर एक का स्वागत करते हैं। From the heart of Christ Church, we welcome you all. हार्ट ऑफ क्राइस्ट की कलीसिया से हम हर एक का स्वागत करते हैं। And we believe that you all are doing good. हम विश्वास करते हैं कि आप लोग सब सुरक्षित हैं, ठीक है। And we thank God for making us to witness this wonderful day. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने हमें गवाह बनाकर खड़ा किया है कि हम आज के दिन को देख सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। As we begin the worship and word, जैसे हम आज की आराधना और स्तुति को शुरू करते हैं, let us turn to our Bibles from Colossians. हम कोलोसियों का किताब खोलेंगे। So Colossians chapter 3 verse 15 to 17. कोलोसियों का तीसरा अध्याय वचन 15 से 17 तक। From 15, let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace, and be thankful. Let the message of Christ dwell amongst us richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, and give thanks to God the Father through Him. आमीन। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति। God is a wonderful God. परमेश्वर महान है। And as we begin the worship and word, जैसे आज की आराधना स्तुति को शुरू करते हैं let us meditate upon this word. और हम इस वचन में मनन करेंगे And the Lord has spoke to us और परमेश्वर ने हमसे बात किया है that let there be peace in Christ. और परमेश्वर में हमें शांति मिले। So let us look up to the Lord in prayer. आए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की ओर। Lord, we thank you for this time you have given us. प्रभु धन्यवाद करते सुंदर समय जो आपने दिया। Lord, you said, Master God, that let there be peace of Christ in our hearts. प्रभु आपने कहा कि परमेश्वर की जो शांति है वो हमारे जीवन में आए। And let us be thankful to everything you have done in our और lives. जो कुछ भी आपने किया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। And you said the word of Christ, let it be dwelling in our hearts. और परमेश्वर की जो वचन है वो हमारे हृदय में बसने दे। And let us praise Him through hymns and songs, और प्रभु आराधना स्तुति से आपकी महिमा हम करें singing to the Lord with a grateful heart. और हृदय की गहराइयों से धन्यवाद हृदय के साथ हम धन्यवाद करें। Your word says that whatever you do it with cheerfulness. और आपके वचन में कहा है जो कुछ भी तुम करते हो खुशी के साथ करो। And everything you do, give thanks to the Lord Almighty जो कुछ God. भी तुम करते हो परमेश्वर को धन्यवादी के साथ करो। Lord, we thank you for speaking to us through your word today. प्रभु धन्यवाद आपने अपने वचन द्वारा हमसे बात किया। We thank you for the time you have given us. धन्यवाद इस सुंदर समय जो आपने दिया। And we thank you for the worship and word which are going to lead us. आराधना स्तुति में और वचन में आप हमें चलाने वाले हैं उसके लिए धन्यवाद। Lord, we pray for all those who are watching us live right now, Father जो God. कोई आज लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करें। Lord, every deep desires you fulfill it in the name of हृदय Jesus. की गहराई इच्छाओं को आप पूरा कीजिए यीशु के नाम से। Let your will be done on earth as it is done in our lives as well. पृथ्वी में वैसे ही हो जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होता है। Lord, we keep each and every one our family members into your precious hands, प्रभु Lord. हर एक जन को हमारे परिवारों को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। Lord, lead us through your word and worship वचन और आराधना के द्वारा हमें चलाइए and speak to us through your word, oh Father और God. आपके वचन द्वारा हमसे बात कीजिए। Lord, we pray for the pastor. पासवान के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Lord, thank you for the word which you're going to give him in the name of Jesus. धन्यवाद यीशु कि आप जो वचन आज संदेश बांटने वाले यीशु के नाम से। And we pray for the worship team who's going to lead us into the worship where we could sing praise and hymns in the name of Jesus. और प्रभु हम आराधकों के लिए धन्यवाद करते हैं जो आज हमें चलाएंगे अगुवाई करेंगे ताकि हम आपकी महिमा करें।
We thank you for keeping us hale and healthy. प्रभु धन्यवाद करते हैं आपने हमें अच्छे से स्वस्थ रूप दिया है। And we thank you for giving us all the provisions we needed. प्रभु जो कुछ भी उपलब्ध चाहिए हमें वो सब आपने किया, उसके लिए धन्यवाद। And we thank you for all the wonderful people who are watching us live right now in the name और of जो कोई Jesus. लाइव ये देख रहे हैं और देखने वाले हर एक के लिए धन्यवाद यीशु। And we pray for all those who couldn't make it this day. और आज के दिन में जो कोई शामिल नहीं हो पाए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, we keep each and everything into your precious hands. आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु सब कुछ। We give you all the glory and honor. सारी स्तुति महिमा आपको मिले। In the name of Jesus, we humbly pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. Amen. हम मांगते हैं। आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप सब उत्साहित हैं? हमारा परमेश्वर योग्य है और उनके समान कोई नहीं है। आमीन। जैसे आज के दिन हम शुरू करने वाले आराधना स्तुति में उत्साहित के साथ उस बड़े परमेश्वर की हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो हर स्तुति के लिए योग्य है, उनके समान कोई नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो आज ये दिन को देख नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से, because of the grace of God and His love, we are alive today and we are standing here to worship Him. Are you excited to worship Him today? Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. We welcome you all again in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. जैसे आप हमारे साथ मिल रहे हैं, यहाँ ज्वाइन किए हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को आपके परिवार, फैमिलीज, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस संडे मॉर्निंग, इस रविवार की सुबह हमारे साथ मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। Yes, let's give the Lord a mighty clap offering and glorify the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus. We give you praise, Lord Jesus. Hallelujah. Jesus. We worship you, Lord. हालेलुया। साथ मिलके हम करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग
परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। If you believe the King of Kings, the Lord of Hosts is your God, आप अपना आवाज उठाकर पूरे दिल से और मन से प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। लाजर को जिसने जिलाया, लाजर को जिसने जिलाया, ज़क्काई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, ज़क्काई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग
हालेलुया। उत्साह के साथ जैसे परमेश्वर हमारे बीच में है, वो जय के योग्य है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का भी प्रभु। आमीन। जिसकी आराधना कर रहे हैं वो हमारे बीच में है। आमीन। हम जिसकी आराधना करें वो दूरी का परमेश्वर केवल नहीं है, वो करीब का भी परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है कि जो भी उनको पुकारते हैं परमेश्वर उनको उत्तर देता है। The Bible says, "Call unto me and I will answer you and show you great and mighty things you do not know." तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और ऐसी महान गुप्त बातें को दिखाऊंगा जो तुम कभी समझते नहीं हो, जानते नहीं हो। हालेलुया। अब जैसे आज सुबह हमारे साथ जुड़े हैं, जान लीजिए कि बहुत सारी गुप्त बातें हैं जो परमेश्वर आपको प्रकट करना चाहते हैं। हालेलुया। आज भी जैसे हमने गाया, स्वर्ग उनका सिंहासन है, पृथ्वी उनकी आसन है। The Bible says, "The heavens are his throne and the earth his footstool." आज भी हम जैसे आए हैं, आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, हम परमेश्वर के बहुत करीब हैं। Amen. The Bible says, if we want to please the Lord, our worship is the way in which we can please the Lord. आराधना के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आज भी जैसे हम स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, अपने आप को नम्र कर देंगे और कहेंगे, प्रभु आज भी मुझे आपकी गुप्त बातों को मुझे प्रकट कीजिए, मेरे जीवन में आपकी गुप्त बातों को प्रकट कीजिए। हालेलुया। आप जैसे जुड़े हैं सभी कहेंगे, यीशु आपकी गुप्त बातों को मुझे प्रकट कीजिए। जीसस, रिवील दोस सीक्रेट्स ऑफ योर हार्ट टू मी। मैं आपको और जानना चाहता हूँ, आपके और करीब आना चाहता हूँ। The Bible says he is the Lord of hosts. वो सेनाओं का यहोवा है। वो परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी, नदी होने दो, जो सी होने दो, the dry land होने दो, वो हमारा परमेश्वर सृष्टि करता है। और जैसे बाइबल में लिखा है कि सेनाओं का वो यहोवा है, तो hosts जो सूर्य होने दो, चांद होने दो, सब कुछ अपने परमेश्वर, अपने सृष्टिकर्ता को जानता है। The creation knows their creator. पर हम जो मनुष्य है, जिसको परमेश्वर ने इतने प्रेम से बनाया, अपने हाथों से बनाया, हम बहुत बार भूल जाते हैं कि हमारा सृष्टिकर्ता कौन है। Many a times, the Bible says the hosts, be it the stars, the moon, the suns, be it animals and living creatures, the birds, the trees, they know their creator. But we, mankind, who are made in the own image and likeness of God, हम जो परमेश्वर के हाथों से रचे गए हैं, we who are made by the hands of God, we many times forget whose we are. हम भूल जाते कि हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा क्रिएटर कौन है। आमेन। पर हमारा परमेश्वर यहोवा, सेनाओं का यहोवा है, हमारे बीच में आज भी जिंदा है। आमेन। 2000 साल पहले यीशु इस दुनिया में आए, उन्होंने अपना महान कार्य अपने हाथों से करके हमें प्रकट किया है। क्रूस उठाया और हमारे लिए मरे और तीसरे दिन वो जी उठे। आज भी जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो जिंदा है। सभी कहेंगे, मेरा यीशु जिंदा है। Come on, say it together. My Jesus is alive. मेरा यीशु जिंदा है। आज भी जैसे परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, उत्साह के साथ हम रहेंगे और कहेंगे, प्रभु आप जिंदा है, तो आप आज भी मेरे जीवन में महान कार्य कर सकते हैं। Even this day you can do something marvelous in my life because you are alive today. Hallelujah. उत्साह के साथ हम परमेश्वर को खोजेंगे, हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, हम अपने आप को नम्र करेंगे, उनको हम प्रसन्न करेंगे। Even this day we will please the Lord Jesus Christ as we worship with all our hearts, our soul, our mind and strength. Amen. Come on, join along with us. जैसे कि हम परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, आपके घरों में भी परमेश्वर की महिमा आएगी। परमेश्वर आपको भी छुएंगे। आज भी एक नया चमत्कार चिन्ह करके परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। Amen. The Bible says Jesus went about doing all the good. परमेश्वर यीशु अच्छे काम करते करते चलते रहते इस दुनिया में। आज भी वो अच्छे काम आपके जीवन में करने वाले हैं। Even this day, He's gonna do a good thing in your life. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus, thank you, Father. Jesus, come on together. We fall down. We lay our crowns at the feet of Jesus. हम गिरते हैं प्रभु आपके सामने। बाइबल में लिखा है कि आराधना ये है कि जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को पूरी तरह से नम्र करते हैं। Worship is this, that when we fall down at our feet, we fall at Lord's feet, we bow down, we say, Lord, I am nothing. You are everything. Hallelujah. Let's join along together. We lay our crown
the greatness of your mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. No more fears, you've dried our tears at the feet of Jesus. No more fears, you've dried our tears at the feet of Jesus. Grace abounds, the grace abounds to all who found at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. Come on together. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. हालेलुया। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो पवित्र है, पवित्र है, अति पवित्र है, सेनाओं का यहोवा। बाइबल में लिखा है कि जो भी यीशु के पास आए थे वो उनको प्रणाम करके आराधना किए। हालेलुया। The Bible says when people came to meet Jesus, they came to ask him something. कुछ रिक्वेस्ट करने आए थे, चंगाई मांगने आए थे, छुटकारा मांगने आए थे। तो बाइबल में लिखा है कि वो लोग आके परमेश्वर यीशु के सामने मुंह पर गिर के उनकी आराधना किए। It says they worshipped him. If you see many verses, बहुत सारे वचन नए नियम में हम देखते हैं कि सब लोग परमेश्वर के यीशु के सामने आके गिरते हैं और परमेश्वर की आराधना किए। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब आराधना की बात करते हैं तो हम सोचते हैं सिर्फ गीत गाना आराधना होता है। Many times we think that when we are singing a song, it's just worship. No, worship is when you offer yourself up as a living sacrifice, pleasing to God. जब आप अपने आप को एक जीवित बलिदान के समान परमेश्वर के सामने आप बलिदान करते हैं अपने जीवन को, वो आराधना है। हालेलुया। जब अपने आप को पूरी तरह से नम्र करते हैं, अपना जो भी पोजीशन है, धन है, दौलत है, हमारा जो भी स्टेटस है, हमारा जो भी एजुकेशन है, कुछ भी होने दो, whoever we may be in this world, at the feet of Jesus we are nothing. परमेश्वर यीशु के चरणों में हम कुछ नहीं है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, अपने आप को पूरी तरह से नम्र करते, झुकते हैं और जानते हैं कि वो महान है, वो आराधना है। And as we sang, हमारा जो भी मुकुट है, maybe we are boasting about something that we have, अगर कुछ मुकुट, crown, that oh I am this, I am that, पर जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो मुकुट भी परमेश्वर के सामने उनके पैर तले होता है। Hallelujah. When we fall down at His feet, you know, when we worship Him, हमारा मुकुट, हमारा जो भी है, वो सब कुछ परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। It's nothing, but He crowns us with His glory. वो अपनी महिमा से, हालेलुया, वो अपनी महिमा से, with His glory, He crowns us. हालेलुया। अपनी महिमा से वो हमें मुकुट पहनाते हैं। आमेन। तो आज जैसे हम आराधना करते हैं, प्रभु, it's not my glory that matters. It does not matter who I am at all. मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, वो मायना नहीं रखता प्रभु, पर आप महान हैं, आप राजाओं का राजा हैं, आप प्रभुओं का प्रभु है, आप सिंहासन पर विराजमान है, आप आराधना की योग्य है। This is what matters, Daddy, at this time. Hallelujah. Ramashaniddala. Can we all sing together, lifting up our voices? Let's praise the Lord and worship the Lord in truth and in spirit. आत्मा और सच्चाई से हम उनकी आराधना करेंगे। आइए आवाज उठाते हुए, let's lift our voices together. We fall down, we lay our crowns, Daddy, at your feet. Come on together. Hallelujah. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus.
the greatness of your mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. Together, we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. वो इतना पवित्र है, वो मेरा पवित्र है, तो we cry. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. No fears, you dry our tears. हमें अभी कुछ बात की डर नहीं है प्रभु, क्योंकि आपने हमारे सारे आंसू को पोंछ लिया है। आपका अनुग्रह हमारे अंदर उमड़ता रहता है। You dried our tears at the feet of Jesus. Grace abounds to all who found at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Who can ascend to the hill of the Lord? परमेश्वर के पवित्र मंदिर में, परमेश्वर के पवित्र पहाड़ में कौन जा सकता है? He who has clean hands and a pure heart, जिसका मन साफ है, जिसका हाथ शुद्ध है। हालेलुया। रहे पवित्र मां प्रभु आज भी आपके पवित्र उपस्थिति में मानते हैं। We come to your holy presence, Father. Jesus Christ, we come to your holy presence. पवित्र आत्मा हमारे को छू लीजिए प्रभु। आज किसी वक्त छू लीजिए यीशु। हालेलुया। We praise you. We praise you. We praise you. We praise you, Daddy. We praise you. Hallelujah. Bhavotaresha. Blerandra katini molora. Ishai melorama. We are not praising or worshiping a God who's far off. प्रभु हमारे बहुत करीब है। He's close to us. He's close to the broken-hearted and to such as have a contrite spirit. हालेलुया। पवित्र आत्मा आज भी हमारे जीवन में कार्य कीजिए। आपकी आत्मा आज भी हर एक को छूने दे यीशु मसीह के नाम में। जो भी चंगाई माता है अभी यीशु मसीह के नाम में चंगाई उनको होने दे प्रभु। जो भी छुटकारा मांग रहा है अभी इसी वक्त उनके जीवन में छुटकारा आने दे यीशु मसीह के नाम में। All those who are praying for a healing, for a miracle, we declare in the name of Jesus that they will receive it. Father, increase their faith. Let them know that even today you are alive. You are the Lord of hosts. You are alive in our midst. You are seated on the throne. आप सियासत में विराजमान है प्रभु। We lay everything at your feet. हम सब कुछ आपकी सियासत के प्रभु सामने रखते हैं प्रभु। आपके चरणों में रखते हैं यीशु। Dwell in our midst. Remain in us. Abide in us. हमारे जीवन में कार्य कीजिए यीशु। Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम आपसे प्रेम करते हैं। We love you, Lord. We love you, Lord Jesus. We love you, Daddy. We love you, Daddy. We love you, Daddy. We cry, holy, holy, holy. पवित्र, पवित्र, अति पवित्र सेनाओं का यहोवा। पवित्र कमल से पवित्र, पवित्र, अति पवित्र सेनाओं का यहोवा। अगर कुछ भी आपके जीवन में जो यीशु को पसंद नहीं है, अभी परमेश्वर से माफी मांगिए। परमेश्वर एक शुद्ध हृदय को जानता है। He wants a pure heart. He wants a clean heart. Hallelujah. आज भी अगर कुछ भी ऐसा
ऐसा है जो परमेश्वर को आपसे दूर करता है। Come on, confess it to Jesus. यीशु से माफी मांगिए, कहिए यीशु मेरे जीवन को आपके लहू से शुद्ध कीजिए। Purify me, Father, with your holy blood, Daddy. Hallelujah, holy, holy. We cry out holy. We cry out holy. Pavitra, pavitra, pavitra. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हम कहेंगे यीशु तू बदल दे मेरे मन को। इस जीवन को तेरी
नाम से बांधते हैं। आज जो कोई ये लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं प्रभु, जो कोई ये देखने वाले, हर एक के जीवन में एक अद्भुत कार्य हो जाए यीशु के नाम से। In the name of Jesus, we bind every part of darkness that stands against your children. We bind every darkness, every heart, Lord, every part of darkness, every plan of the evil one. We bind it and we throw it out. In the name of Jesus, Lord, you said there is freedom in the name of Jesus. There's liberty in your presence, Lord. आपकी पवित्र आत्मा में प्रभु छुटकारा है। आपकी आत्मा में प्रभु सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। और आज भी हम हर एक चीज को जो हमारे जीवन में बंधन होके आता है, यीशु के नाम से हम उसको नष्ट करते हैं। और अपने मुंह खोल के कहेंगे कलीसिया, यीशु के नाम से हम उसको नष्ट करते हैं। मेरे विरुद्ध में जो कोई खड़ा होता है, हर एक योजनाओं को हम नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। मेरा भविष्य यीशु के हाथ में है, मेरी आशा यीशु में बना है। मैं यीशु के नाम से स्थिर होता हूँ, मैं यीशु के नाम से गिरकर भी वापस स्थिर होता हूँ, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की सुबह के लिए धन्यवाद। आज भी आपने हमें दृढ़ किया है, स्थिर बनाया है। आज भी आप अपने वचन द्वारा संदेश में हमसे बात करने वाले हैं, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आइए जोरदार ताली बजा के हम तो प्रभु का धन्यवाद करेंगे। He is a God who lives. He is a God who listens. He is a God who hears the cry of His children. मेरी बेट की आवाज को मैं सुनूंगा, आपने कहा प्रभु। आज भी हमारे आवाज के लिए आपका कान खुला है, उसके लिए धन्यवाद यीशु। मनुष्य हमारी विनती को नकार सकते हैं, लेकिन आप स्वीकारने वाले परमेश्वर हैं। सही समय में आप पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। और आज भी प्रभु हर रुकावटों को हम यीशु के नाम से निकालते हैं। आज के दिन हम हर एक के लिए आशीष बने, हमारी कलीसिया के लिए, हर एक परिवार के लिए। जो कोई आज ये लाइव स्ट्रीम को देखने वाले हर एक के परिवार में आज के दिन एक आशीष बने। ये पूरे हफ्ते में एक चमत्कार हर एक के जीवन में आए प्रभु, एक अद्भुत कार्य, एक अद्भुत साक्षी उठने दे यीशु के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं। सारी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, गौरव हम केवल यीशु नाम को देते हैं। यीशु मसीह की पवित्र, अति पवित्र नाम से सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय जीवित पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजा के हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर जीवित है। आशीष करे। सबका स्वागत वापस यीशु मसीह नाम में हार्ट ऑफ क्राइस्ट चर्च की लाइव स्ट्रीम में करना चाहते हैं। अब जैसे हमारे साथ जुड़े हैं इस लाइव पर, आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि वो भी आज का ये सभा में भाग्य बने, परमेश्वर का वचन सुने और एक नया आशीष पाए। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे। पासवान आकर परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे। आप उत्साह के साथ अपने बाइबल खोल लीजिए, कान खोल लीजिए, हृदय खोल लीजिए, मन को खोल दीजिए। परमेश्वर हम सबसे बात करेंगे। आमेन। द बाइबल सेज ही who has ears let him hear। जिसके पास कान हो वो सुने। आज भी परमेश्वर ने हम सबको कान तो दिया है, पर परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी गुप्त बातों को हम समझे, उनके वचन को ग्रहण करें और परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से आपको सबको मैं आशीष देता हूँ। I bless you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हालेलुया। Hallelujah. आप उत्साहित हैं? Are you excited? परमेश्वर का प्रशंसा हम सबको ऊपर गिरा हुआ है। The presence of the Lord is pouring over us. जो परमेश्वर जो ढूंढ रहा है सच्चाई मन से, सच्चाई से उनकी जो आराधना करने वाले के ऊपर वो ढूंढ रहा है। He searches and looks for those who worship Him in spirit and in truth. यीशु मसीह ने इस संसार में जो आया, हम सबको बचाने के लिए आया है। And Jesus came to this world to save all of us. और दुनिया के ऊपर उसने प्रेम करता है। He loves the world. पूरा संसार के ऊपर प्रेम करते हैं। He loves the entire world. किसी को वो नफरत नहीं करते हैं। He doesn't reject anyone. मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको जो बात करना चाहता है, Today what the Lord is going to talk to you, तो आपका जीवन किस तरफ जो लेना है, how your life is supposed to be. आज भी संदेश जो है, Today's message, हम वचन पर पढ़ेंगे लूक चैप्टर 5 वर्स 36।
लूक का 5वां अध्याय 36 वचन पढ़ेंगे। Luke chapter 5 verse 36. Then he spoke a parable to them. No one puts a piece from a new garment on an old one. Otherwise, the new makes a tear, and also the piece that was taken out of the new does not match the old. उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, हमें किस तरह जो रहना है। Jesus is teaching us about how we have to live. एक नया वस्त्र का और पुराना वस्त्र का बारे में जो प्रभु जो बता रहा है, God is talking to us about the new garment and the old one. जो पुराने जो वस्त्र के साथ जो नया वस्त्र को जोड़ नहीं सकते करके प्रभु बता रहा है। That you cannot join the new and old garment. It is very easy to समझने के बहुत easy लग रहा है। It's something very easy to understand. आप भी ये घर पे करके दिखा सकता है। You can test for yourselves at home. एक नया वस्त्र को फाड़ के एक पुराना वस्त्र को साथ में जोड़ने के बाद क्या होता है आपको पता चल जाएगा। You know what will happen if you join a new garment and you stitch it along with an old one. परमेश्वर जो बता रहा है दोनों मतलब जो नया जो वस्त्र जो है वो दूसरे को फाड़ देंगे। The Lord is telling us that when you join the new garment with the old, it tears and spoils the old one. और उसमें ये जो लिखा है जो नया वस्त्र पुराना वस्त्र जोड़ नहीं सकता करके जो लिखा है। So and it spoils the new garment, and because of this you cannot join the old and new garment together. अगर परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करने के बाद If you believe after you believe in the Lord, आप सोच रहे हैं मेरा यीशु अच्छा है, वो उद्धार करता है, हमारे पापों को क्षमा किया है, हमें बचाने वाले परमेश्वर यीशु मसीह करके आपने विश्वास जो किया है। as you have believed that yes, Jesus has cleansed me from all my sins, He's forgiven me, He's given me a new life. लेकिन इसका होने के बाद आपका जीवन बदलना चाहिए। But after you believe in Jesus, there must be a different transformation in your lives. अगर जीवन बदला नहीं है तो ये सब कुछ वेस्ट है। If your life has not been transformed or changed, this acceptance of the Lord becomes a vain. आपने विश्वास जो किया है अच्छी बात है। It's good that you believe in God. जो वचन में जो लिखा है जो विश्वास किया तो भी उससे बढ़कर अगर वो कार्य में नहीं है तो उसका विश्वास खत्म है, मर चुका है, बता रहा है। It says that if he does not put his faith in action, it is dead. ये नया वस्त्र के बारे में बताएंगे। So we learn about the new garment. जो नया वस्त्र अभी समझ लो जो लूक चैप्टर 15 वर्स 22 में पढ़ेंगे, ये वचन इधर इधर और आगे पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 15 वर्स 22। लूका के किताब 15 अध्याय 22 वचन। But the father said to his servants, bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। ये जो दो बेटे के बारे में जो आप सबको इसके बारे में मालूम तो है। Most of you know about the story about the two sons. जो प्रोडिगल सन के बारे में अच्छी तरह सबको मालूम तो है। The prodigal son. इसमें एक चीज को हम वापस पढ़ना चाहता हूँ, वर्स 20 को देख लेंगे, वर्स 20 पढ़ेंगे। We'll read verse 20. And he rose and came to his father, but when he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूरी ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया
और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चुमा। हालेलुया। इसमें जो लिखा है ये पिता का मतलब प्रेम का बारे में जो बता रहा है। So this talks about the love of God. ये जो बेटा हर चीजों को अपने पैसे अपने बाप के लेके जाके सब खराब स्पेंड करके पूरा भिखारी का तरफ से पूरा नाश करके फिर वापस आ रहा है। We see that the prodigal son, he had let go and lost all his money and comes empty-handed, seeking something to do in the father's place. ये जो बात वो बेटा ने किस तरफ से अपने पैसा को खर्च कर दिया, क्या किया करके पिता को भी पता है। And even the father was aware about how his son had swindled the money. वही जो है वर्स 30 में जो लिखा है, And that is written in verse 30. वो बड़ा बेटा बता रहा है, But as soon as this son of yours came, who has devoured your livelihood with harlots, you killed the fatted calf for him. परंतु जब तेरा यह पुत्र जिससे तेरी संपत्ति बेश्याओं में उड़ा दी है आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। ये जो बता रहा है इनको पता है, इनका अपने छोटा भाई ने क्या किया करके मतलब परिवार को मालूम पड़ा। So the whole family, the entire family was aware of what the younger son did. पैसा लेके गया, घर कोई व्यभिचार कर रहा था, मतलब गलत काम कर रहा था, हर चीज को अपने पैसे के खर्च करके लॉस करके मतलब गुजरा करके अपने परिवार सबको पता है। Everyone was aware about how he swindled his money, how he went into wrong things. Everybody was aware about जो it. वही वचन 20 में जो लिखा है, जो पिता को मालूम होके भी मेरा बेटा वापस आ रहा है करके वो देखते रहता है, एक दिन आएगा करके वो इंतजार कर रहा था। In spite of knowing about what and how the son has been returning back, the father awaits for him, lovingly expecting to welcome him. आपको ये पता है कि बेटा दौड़ के नहीं गया, पिता ने बेटे की तरफ दौड़ के आ गया है। We see that the son did not run towards the father, but the father ran towards और the उनको son. गले लगा के उनको चुम्मा दे के वो रो रहा था। And he hugs him and kisses him. यही पिता परमेश्वर ने हम सबको ऊपर जो इंतजार कर रहा है। The same way the Lord, our Father, awaits for us. कि वो पिता ये नहीं बोल सकता है तुमने सब पैसा जो उड़ा दिया अभी तुम इधर हाँ मत करके वो बात कर सकता था। He did not despise the son, saying, "You anyway swindled the money, wasted the money. Now don't come back to me." तुम्हारा बात अभी कुछ भी नहीं है, तुम्हारी शेयर कुछ भी नहीं, तुम निकल जाओ करके वापस बोल सकता था। He did not condemn him and say that you have no shares with me now anymore. I'm not your father मैं तुम anymore. कितनी बार बता रहा तुम सुनता नहीं है, तुम सब जीत करके सब पैसा लेके गया था। How many times I've warned you? You took my money and you went away. लेकिन उस तरफ वो उसने कुछ नहीं कहा। But we see that that's not how the father responds. वो बेटा वापस आने के बाद वो मन बिरक आगे करके पिता को मालूम पड़ गया है। And when the father realizes that the son has repented and is turning back, तब अपने जो सेवक को बता रहे हैं जाओ जाके अच्छा मतलब सबसे ऊंचा वस्त्र उनके पहन ले। so he tells the servants, "Go and get him the best garment." Come on, क्यों आपको ये पता है कि उनके घर पे कपड़ा तो है, इनका सब कपड़ा तो लेके नहीं गया होंगे, कपड़ा तो होगा। He might be having his clothes in his house, right? यहाँ जाके वो कपड़ा दे दो करके नहीं बोल सकता है। He could have said, "Go and bring one of his clothes." उन्होंने सबसे ऊंचा मतलब अच्छा कपड़ा उनको पहन लो करके। But the father says, "Go and bring the best robe for him." परमेश्वर आपको अच्छा कपड़ा दे रहा है, आप वो पहनने के बाद आप गंदा कपड़ा पहनने की नहीं जाना चाहिए। So once the Lord has given you the opportunity, the grace to wear something, a new robe, you should not go back turning to wear something that is old and spoiled ones. नया कपड़ा दे रहा है तो वो जो कपड़ा जो है वस्त्र को फाड़ के पुराने में जोड़ना नहीं चाहिए कि इसके लिए परमेश्वर जो बता रहा है। That is why God is telling you must not join the old garment with the new garment. परमेश्वर आपको नया जीवन जो दे रहा है, नया आशीष देने के दे रहा है, नया आपको अभिषेक दे रहा है, तो पुराने चीजों को आपको भूल जाना चाहिए। When God is willing to give you a new life, a new anointing, then you need to get rid of the old life. और लूक चैप्टर 5 वर्स 37 में वापस पढ़ेंगे किस तरफ से और एक कहानी जो आप एक चीजों के बारे में प्रभु जो बता रहा है। लूक चैप्टर 5 वर्स 37
And no one puts new wine into old wine skins, or else the new wine will burst the wineskins and be spilled, and the wineskins will be ruined. और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा। जो नया डार्क रस के बारे में जो प्रभु जो कहानी जो बता रहा है, God is talking about the new wine. ये जो नया डार्क रस को आपको किसके साथ में रखना है? This new wine, with what should you keep it? नया जार में रखना चाहिए। You must keep it in a new wineskin. इसमें जो लिखा है, अगर नया आपको परमेश्वर नया जीवन दे रहा है, नया मधुर दे रहा है, If God is giving you a new life, a new wine, और आप क्या कर रहा है, उसको पुराना चीजों का अंदर रखता है, and what do? You fill this new wine into old wineskin. और वो क्या उसमें बच्चे में लिखा है, वो बांट देगा, मतलब उसको तोड़ देगा करके। And it's written that it will burst the wineskin. तो उसे क्या करना चाहिए? वर्स 38 में जो लिखा है, And verse 38 says, but new wine must be put into new wineskins, and both are preserved. परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। नया दाखरस को नया मशकों में नया जहान में रखना चाहिए, तब ये भी सुरक्षित रहेंगे, वो भी सुरक्षित रहेंगे। So the new wine is supposed to be filled in new wineskin, and because of which both the wines will be preserved. आपके जीवन में समझ लीजिए, आपके जीवन में इस तरफ से पुराना चीजों के बारे में आपको सोचना कोई जरूरी है कि नहीं, ये पता चलेंगे। We'll come to know if you need to ponder about your old life, आपने पुराने जीवन में किस तरफ जिया होंगे, how you would have been living your old life. आप कभी-कभी आप सोचते समय में आपको अपने आप को नफरत हो जाता है। Sometimes when you think about your past, you may hate yourself. जी, मैं इस तरह मैं जीवन बिता दिया, Why did I live such a worthless life? मैं इस तरह जीवन नहीं बिताना चाहिए करके, I shouldn't have lived such a disgusting मेरा life. जीवन पहला क्यों इस तरह नाश करने के लिए मैं क्यों कारण बन गया करके अपने आप को देखने के समय में पता चल जाएगा। Why was I using myself to destroy my own life? You might be thinking like this. हम कभी-कभी क्या कर रहा है, पुराने चीजों के बारे में कभी-कभी भूल जाता है, लेकिन कभी-कभी इस शैतान ने आपको पुराना पिक्चर को, पुराना आदमी को, पुराना रिश्तेदार को वापस आपको जोड़ता है। Many times we want to get rid of our past, rid of our old lives, and want to live afresh. But Satan uses different tactics to get along with your old connections, get along with your old relations or your old lifestyles. आपको पुराना जीवन को भूल के आप नया जीवन में आने के बाद, once you get rid of your old life and come and you enter into a new life, इसका मतलब ये नहीं है आपका पुराना कोई फ्रेंड आ रहा है, कोई दोस्त मिल रहा है, कोई मित्र मिल रहा है, आपका अच्छा है, लेकिन उनको आप हेलो हाउ आर यू करके बोल सकता है, मिल सकता है, लेकिन उनके साथ ज्यादा जोड़े तो it's good maybe when you left your old life and you enter a new life and you say that and you happen to meet an old friend, it's good to greet them and just talk about it. परमेश्वर ये नहीं कहा तुमने किसी को सबको भूल जाओ, इससे बात नहीं करना, इससे ये नहीं बात किया है। God has not told you to forget everybody and get rid of everyone. जो पुराना चीजों में तुम पापों से बाहर आए होंगे, तो नफरत और गलत चीजों से बाहर आए होंगे, लेकिन उनके साथ मिलने के समय में when you meet those who you would have had wrong connections with in your past, वापस आप उसी में गिरने वाला है। if you join back and get reconnected to those who were influenced with you, who have been joining with you in the wrong deeds and the wrong works, you're going back to your old lifestyle. अभी बहुत जन क्या करता है, छोटी उम्र में प्रेम करता है, कॉलेज में स्कूल में पढ़ने के प्रेम करता है। For instance, there are some people who fall in love in their young age, और बाद में अलग-अलग जगह में शादी हो जाता है, and then after that they get married to different people. और इनका रिश्ता अलग होता है, उनका रिश्ता अलग होता है। Both their relationships are different. अगर काफी दिन के बाद, काफी साल के बाद एक दूसरे के मिलने के लिए कभी मौका मिला,
And say for instance they happen to meet each other again after many years, आपको क्या करना चाहिए? what should you do? वो बोलेंगे आपको मिलकर बहुत खुश हो गया, मैं कितने दिन से तड़प रहा था, अब वापस मिल गया करके बहुत आनंद से बात करेंगे। And someone may be very excitedly and will be pouring out their love, saying that I'm so excited to see you, I was longing to see you. हाँ भी उस तरह उसको बात करेंगे, हाँ मेरा मन बहुत दिन से तड़प रहा था, मैं भूल गया था लेकिन अभी वापस मिल गया करके बहुत आनंद से बात And करेंगे। you might be also answering that, yeah, I'm so excited to see you again, and I'm also very happy to meet you. चलो कमान मेरे घर पे, आज तुम्हारे घर पे मैं आ रहा चाय पीने के लिए। And they say, I'm coming for tea to your place. चलो हम जाएंगे होटल में, कुछ नाश्ता करके आएंगे, Let's go to a restaurant and have something. कुछ बात करके आएंगे। Let's speak, just catch up. क्या होगा? What will happen? आपने अपने जीवन में पुराना वस्त्र को नया वस्त्र के साथ में जोड़ रहा है। What you are doing is you are joining again the old garment with the new one. आप ये बोल सकते हैं, मैं कैसा उनके सामने बात करूं, मेरे घर पे मत आओ, मेरे से बात मत करो, वो क्या सोचेंगी, वो क्या सोचेगा, मैं कैसा उनके साथ इस तरह बात करूंगा कि आपको मन में आएगा। You might be confused and might be thinking, how will I say no? How will I avoid this situation? How will I tell, don't come here, don't get along again? आज बहुत जन इस तरह जो सोच रहा है, मतलब मैं इनके साथ कैसा बात करेंगे, मेरे पास हिम्मत नहीं है, मतलब मेरा पास कैसा बात करूं, मेरे पास इतना अच्छा है, मैं कैसा बात करूं करके कोई बहुत जन बात नहीं करते हैं। And many people like this think, and so they avoid the situation and say, how will I say no? How will I do things? सीधी सी बात है, very easy to break it। So it's very easy to break the relationship. किस तरह जो करना है, How to do it? ओपनली बात करना है। You need to be open in your conversation. मेरा रिश्ता दूसरे के साथ, मेरा दूसरा शादी हो गया है, मैं मेरा पति के साथ अभी खुश है, नहीं तो मेरा पत्नी के साथ मैं खुश है, अभी आपको हमारे जीवन में आना नहीं चाहिए, ताकि आपको क्लियरली बात करना है। You need to learn to communicate clearly, saying that now I am married to my wife or I am married to my husband and I don't want to continue such a relationship ahead in future. ये मेरे को भी अभी पसंद नहीं है, मेरे पति की भी और नहीं तो मेरे पत्नी की भी ये पसंद नहीं है, तो आपको उसी समय बात करना चाहिए। You need to clarify the situation, saying that I don't want to continue with this relationship, I don't like it, nor my spouse would like it. आपको बात करने की थोड़ा तकलीफ रहेंगे, It might be difficult for you to confess it out. और सुनने वाले की थोड़ा तकलीफ रहेंगे, It will be difficult for the person to hear it also. लेकिन ये सही रास्ता है आपको अच्छी तरह रहने के लिए। But that's the right way for living a right life. तो सामने वाले भी समझ जाएंगे, आप भी समझ लेंगे, वो रिश्ता सही रास्ता, आप तो अलग हो जाएंगे, वो अलग जाएंगे। And the opposite person would also understand that yes, this relation is not going to work, and they would also let go of you. अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे तब क्या होगा, आपके जीवन में वापस शैतान आने वाला है। But when you continue this again in your life, Satan brings opportunities to repeat your old life. जो वचन में जो लिखा है, पौलुस ने जो लिखा है, ये मेरे मन को पसंद नहीं है, फिर भी मैं करता हूँ। Paul writes that I do things what I don't like to do. मेरे को ये बात करने की मन नहीं है, पसंद नहीं है, फिर भी मैं बात करता हूँ। I say things that I don't like to say. इनके साथ में वापस मेरे मिलने के लिए, वापस बात करने के लिए मेरे मन नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा रिश्ता, मेरा मन ऐसा उसके साथ बात करने के चाहते हैं। I don't want to keep relationship with certain people, but I am keeping it. ये कारण वचन में जो लिखा है, ये पाप है करके वो जो बता रहा है। The word says that the reason behind this is sin. मेरा अंदर पाप है, इसलिए मैं जिस तरफ जो बात करता हूँ करके। I have sin in me, that is why I speak like इस this. तरफ जो आपको जो पुराना जो चीजों के, आप नया जीवन में आने के बाद पुराने चीजों को मिलना नहीं चाहिए, मिलाना नहीं चाहिए। You should not join the old life with your new life. और हम वापस पढ़ेंगे लूक चैप्टर 5 वर्स 39। And no one, having drunk old wine, immediately desires new, for he says, the old is better. कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। ये क्या बता रहा है? आप ये वचन को बराबर सुन लिए। ये जो लिखा है, पुराना दाखरस को पीने के बाद वो बता रहा है, मतलब मुझे यही बहुत अच्छा है। And once anybody drinks
an old wine and likes the taste of it, says that old wine is much better. ये नया रस, नया दाखरस अच्छा है करके उसको मालूम क्यों नहीं हो रहा है? वो पीने से पहले वो डिसीजन कर रहा था मन में, ये पुराना अच्छा, मतलब पुराना पीने के बाद वो नया पीता नहीं है, फिर भी वो बता रहा है पुराना अच्छा है. Without tasting the new wine, he starts deciding, he has a conclusion in his mind saying that the old one is better. जो नया अच्छा है करके वो सोचता नहीं है. He never understands and thinks that new wine is also tasty. इस तरफ से आज बहुत जन अपने जीवन में नया जीवन आने के बाद पुराना जीवन अच्छा करके वापस मुड़ के देख रहा है. And many people don't realize that what the new life has in her ahead of them, but in spite of that they conclude and they think, no, my old life is better. आपको नया जीवन में आगे बढ़ना है. You need to go ahead in your new life. ये जो बात जो आपका पर्सनल लाइफ में भी होगा, आपका स्पिरिचुअल लाइफ में भी होगा. This might be a topic in your personal life or your spiritual life. आपको जीवन में शैतान इस तरफ जो कार्य करने के लिए मौका नहीं देना है. You must not give a foothold for Satan to do things in your life. अब आगे आदमी के जीवन में वचन में आगे बढ़ने के समय में विश्वास के साथ रहना है. When you go ahead in your spiritual life, you need to keep your faith. इसका मतलब नहीं है आपको 10 साल का पुराना साल का पहला जो कोई मिला होगा, कोई आपको संदेश सुना होगा, उनका बारे में सोचते नहीं रहना है. It's not like I'm telling you that somebody you would have met 10 years back, you must not keep thinking about them. परमेश्वर ने आपको किस तरह लेके आए होंगे. God has called you in certain way. जो वचन में जो क्या है, एक जन जो जान को मतलब एक प्लान को खड़ा करता है, दूसरे ने उसको पानी डालता है, सब कुछ करता है, लेकिन जो बनाना वाला परमेश्वर करके जो बता रहा है. The Bible says that someone sows, someone reaps, and God blesses the harvest. अभी आपको जो कौन आपको फीड कर रहा है, कौन वचन दे रहा है, कौन आपके बारे में समझता है, कौन आपके लिए दिन रात को प्रार्थना करता है, उनके बारे में आपको सोचना जरूरी है. It is important for you to understand who are the ones who pray for you, who are the ones who will help you grow in your spiritual life, who are the one who is spending time for you to grow in the Lord. पौलुस ने अपने चेले के साथ तो बहुत पौलुस के चेले था, लेकिन बहुत जन के बारे में वो तड़प रहा था, वो मन में रोता था, हे मेरा बेटा, हे मेरा बेटी करके वो सबको ऊपर प्रेम से बात करता था और सबके लिए प्रार्थना दिन रात को करता था. We see that Paul used to have this heavy burden over some people, that he used to pray and say, my son, turn and change your lifestyles. He used to worry and talk about certain people. और कौन वचन में लिखा है, अंतिम दिनों में ये एंटी क्राइस्ट, मतलब जो गलत बहुत प्रचार करने वाला है, यीशु मसीह के नाम से आने वाला है, यीशु मसीह का वचन में बेचने वाला है, लेकिन उसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए. The Bible warns us about the Antichrist who will be coming, who will be talking against what the word says, who will be deceiving, who will give deceptional words to the people of God. हम वचन में पढ़ेंगे रोमियो की किताब में, Romans chapter 16 verse 17. आपको परमेश्वर आपके साथ जो बात करता है, जो भी परमेश्वर सिखाता है, उसी से आपको स्ट्रांग रहना है. रोमियो की किताब 16 अध्याय 17 वचन. Now I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses, contrary to the doctrine which you learned, and avoid them. अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो. हालेलुया. ये परमेश्वर आपको जो सिखा रहा है, जो मेरे भाइयों, तुम जो सीखा है परमेश्वर का वचन में तुम स्थिर रहो. Paul is teaching here that here, my brothers, be steady in the word. ये जो शैतान की क्रिया में, जो शैतान जो बना हुआ है, जो आपका दिल को, आपका कलीसिया को, आपका घर को ब्रेक करने वाला जो आएगा कोई, he says that there will be deceptional spirit, that Satan will come to destroy the peace. He comes to destroy your house. और आपका आत्मिक रीजन में, आपका मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में भी वो ब्रेक करने के लिए आएगा. He'll come to destroy your spiritual life. आपको ये नहीं समझना है, आपको जो पुराना जो चीजों को
भूल के नया चीजों में मतलब परमेश्वर आज के दिन किस तरफ तो आपको आगे लेके जा रहा है, उसमें आपको स्ट्रांग रहने के लिए, ये बिगड़ने के लिए आएगा। When you want to get rid of your old life and you come to your new life with a good spiritual thirst, Satan will come to destroy the plans, the good plans that you have. वो लिखा है इसमें बाधा बन के आएगा, उनसे होशियार रहना है। The Bible says that you need to be careful about. Don't touch. The Bible says that you need to be careful and keep a hurdle and be against those who are a hurdle to your life. और उनसे तुम भाग जाओ, निकल जाओ। You run away from those people. तो अगर इस तरफ आप भागने नहीं जाएंगे तो वो कंटिन्यू आपको बस आते रहेंगे। If you don't get rid of them and turn away from them, he will keep following you. जो आपको उधर क्या लिखा है, नया वस्त्र परमेश्वर जो देने वाला वस्त्र है कि वो आपको फाड़ देंगे। What did we read? That if you put the new wine into old wineskin, it will burst. तो नया वस्त्र प्रभु देने के लिए जो तैयार है, वो वस्त्र को वो फाड़ देगा। If God is ready to give you a new garment, और वो वस्त्र मतलब ये पुराना रिश्ते पुराना वस्त्र के साथ में जोड़ने के टाइम में वो पड़ जाएगा। if you join a new garment into the old garment, it will get worn out. तो इसलिए कोई आके आपको जीवन में आ गया तो भी आपको होशियार रहना है। So if somebody comes into your life, you need to be very vigilant and careful. आपका हर क्षेत्र में, In every area of your life. आपको जीवन में भी, आपको जॉब में, आपको फैमिली लाइफ में, आपको स्पिरिचुअल लाइफ में, हर क्षेत्र में आपको शौकत रहना जरूरी है। In every area of your life, you need to be careful, be it in your jobs, be it in your personal relationships, spiritual life. In every area, you need to be vigilant. जो वचन में जो लिखा है, वो रोशनी बन के शैतान आएगा, मतलब The word says that he will come as the angel of light. वो वचन मारेगा, वचन से बात करेंगे। He will talk with you through the word. आपको ये समझना है, परमेश्वर वचन से बात करेंगे, लेकिन ये कौन है करके आपको जानना जरूरी है। So the Bible, as it says that Satan will come as the angel of light, you need to be careful, not just hear the word, but from where is the word coming? हम वचन में पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 15। मत्ती 7 अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे। Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। वो अंदर वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं, मतलब जो वो पेन के मतलब आएगा। So they are like ravenous wolves. ये झूठा है करके जो परमेश्वर जो बता रहा है। And God says that they are deceiving, deceptional. इसके ऊपर हमें शौकत रहना है। And we need to be vigilant and careful. और वर्स 16, उनकी फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? You will know them by their fruits. Do men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? you know their fruit, मतलब जो है वो फल के बारे में आपको मालूम पड़ जाएगा। He says that you know about their fruits. वो किस तरह जो घूम के बात करके किधर आने वाला है, कौन सी किधर आने करके आपको पता चल जाएगा। By the way somebody speaks, you'll understand where they are coming around and what they are trying to speak. हमें इसलिए हर क्षेत्र में प्रभु का ज्ञान से, बुद्धि से, सामर्थ से, प्रभु का अभिषेक से हमें भर के लेना पड़ेगा। And because of this, we need to be very careful with the wisdom and the grace of God to understand situations and what we have to do. एफेसियन 5 अध्याय 22 वचन पढ़ेंगे। इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें? Ephesians chapter 5 verse 22. Sorry, एफेसियन 4 chapter 22. That you put off concerning your former conduct
the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts. और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इसमें जो लिखा है नया मनुष्य को तुम्हारे हृदय में पहन लो। So it's written here that get the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts. ये जो ओल्ड मैन मतलब पुराना मनुष्य को छोड़ के, That means to get rid of your old life. आपके जीवन में जो पुराना रिश्ता है छोड़कर, The old relationships that you had in your life, leave आपके it. जीवन में जो गलत जो काम है, पाप है, हर चीजों को छोड़कर, All the bad things that you have been doing in your life, get rid of those. ये इसने परमेश्वर में लिखा है, उसके साथ में नहीं कहा, उनको छोड़ के आने के लिए जो बता रहा है। He did not tell you to come along with all those old connections, old bad habits that you had, but to get rid of them and go ahead. अगर तुम ओल्ड रिश्ता सब कुछ जो प्रभु को जो पसंद नहीं है सब छोड़ने के समय में परमेश्वर तुम्हें नया मनुष्य तुम्हें बनाएगा। When you get rid of your old self, the old habits, old connections, and turn to the Lord and come to the Lord, He is willing to give you a new life. हालेलुया। Hallelujah. अगर आपने सब कुछ छोड़ने के बाद, क्योंकि अगर आप इसके साथ में पुराना जीवन के साथ में नया जीवन के छोड़ने के समय में नया मनुष्य नहीं बन सकते। When you carry your old habits, your old life along with yourself, and you enter into a new life, you can never have a new life that you really anticipated. नया मनुष्य मतलब नया पुत्र मतलब यीशु मसीह के बारे में जो बता रहा है, अगर यीशु मसीह आपके जीवन में आना है तो आपको पुराने जीवन में सबको भूलना पड़ेगा। If you want a new life and receive the new life that God is giving you, you need to get rid of your old self. वो लिखा है नया आत्मा से अपने हृदय में नया आत्मा, वर्स 23 और 24 पढ़ेंगे। And it is written that he be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Ephesians chapter 4 verse 23 and 24. और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। सब जगह कहेंगे हालेलुया। हालेलुया। ये जो पुराना मनुष्य को बोल के नया स्पिरिचुअल, नया आत्मा, पवित्र आत्मा को अपने अंदर लेना है। You need to forget and get rid of your old self and put on the new person, the new life in yourself. यीशु मसीह को अपने अंदर लेना है। You need to receive Jesus into yourself. पवित्र आत्मा को हमारे अंदर लेना है। Receive the Holy Spirit into your life. तो क्या करना पड़ेगा? So what should you do? आपको बगल वाले की बोलो तुम्हारा पुराना सब कुछ छोड़ के छोड़ के आने के साथ परमेश्वर तुमको नया आत्मा, नया मनुष्य देंगे करके। Turn to someone you know and say, get rid of your old self and come into the new life God has called you for. हालेलुया। Hallelujah. यही है परमेश्वर को जो वचन है, जो पुराना कपड़ा नया वस्त्र से पुराना वस्त्र को जोड़ना नहीं चाहिए करके इसके लिए परमेश्वर बता रहा है। This is the word that God is telling, that you must not join the old garment with the new garment. आपके जीवन में प्रभु आशीष करना चाहता है। God wants to bless you this morning. परमेश्वर अपने अभिषेक से भरना चाहता है। He wants to fill you with this anointing. आपको उच्च स्थान में परमेश्वर लेके जाने के लिए चाहता है। He wants to take you to higher places. तो हमें पुराने चीजों को अंदर ही घूम के नहीं रहना है। You should not be roaming around with the same old life. अब आपके जीवन में कभी कोई कार्य में आपने लॉस हो गया होंगे। You must have some loss in your life. वो चीजों को आप खोया होंगे। You must have lost many things in your life. आपके जीवन में जो हैप्पीनेस से निकल गया होंगे। You would have lost the joy from your life. उसके बारे में बार-बार बोल के आने वाले दिनों को खराब मत करो। And don't keep narrating the same old story to repeat the story in your life. वचन में जो लिखा है नया मनुष्य बनने की नया आत्मा से आपको आगे बढ़ना है। To receive a new life, you need to be filled with newness. बहुत जन पुराने बातें करके नया आशीष देने के लिए वो मिस हो जाता है। They keep repeating the old story and they miss out the new life that God has. हाँ, हो सकता है आपने गलती किया होंगे, आपने कुछ लॉस किया होंगे, लेकिन अभी आइंदा प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु के साथ में, प्रभु का आत्मा द्वारा आगे
पड़ना है। Yes, you would have gone through various losses, but with the word of God and by going ahead of God, going ahead with God, you will receive the blessings of जो God. पहले आपने जो गलती किया होंगे वापस गलती नहीं करना है। If you would have committed some sin before, don't repeat those sins again. हालेलुया। Hallelujah. जो गलती किया होंगे, जो भी आपने कुछ भी किया होंगे, वापस उसको छोड़ के नया प्रारंभ करना है। So if you would have done some wrong things before, get rid of it and start for a new start in your life. परमेश्वर जो बता रहा है कि मैं तुम्हें नया जीवन देंगे, God is saying that I will give you a new life. मैं तुम्हारे लिए पृथ्वी में आया है। I have come for you into this world. आज के जमाने में काफी तकलीफ में, बहुत प्रॉब्लम में हर परिवार चलता है। Today in this world there are many people suffering and going through various problems. हर क्षेत्र में काफी समस्या में गुजर रहा है। Facing problem in many areas of their lives. अब ये नहीं सोचना सिर्फ यहाँ पे, पूरा दुनिया में यही हो रहा है। Don't think that you are the only one suffering. There are so many in this world suffering. जो वचन में ये जो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह आने के समय हो गया, अंतिम समय में इस तरह होने वाला है करके परमेश्वर ने ऑलरेडी लिखा है। As the Lord has already said about it, that in the coming days, in the days to come, many problems and tribulations will be there. इसमें आगे बढ़ने के लिए, इसमें बचने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना है। And so we need to hear the word, परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है। obey the word, जो परमेश्वर को ना पसंद काम है, हर कामों को छोड़ना है। and whatever the Lord does not like, we need to get rid of them. आप परमेश्वर बता रहा है, जो बोझ उठाने वाले, ये मेरा बेटा मेरा बेटी मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम देंगे करके वो तुम्हें बुला रहा है। God says, my dear son and daughter, come here, whoever are heavy laden and heavy burdened, and I will give you rest. आज जो संदेश सीखने वाले, सुनने वाले मेरा भाई, मेरा बेटा, बेटियां, हर जन को, अब कोई भी जात का होने दो, कोई भी धर्म का होने दो, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह आपको भी प्रेम करता है। And no matter where you belong or where you come from, but Jesus loves you. आपके जीवन में जो खोया हुआ प्रभु वापस देने वाला है। Whatever you have lost, the Lord will provide it to जो you. परमेश्वर जो बता रहा है, जो संसार में जो खोया है, उनको मिलने के लिए, उनको ढूंढ के मैं आया करके जो परमेश्वर बता रहा है। And God has come to seek those who are lost. ये आज के दिन आपको परमेश्वर पुकार रहा है। And today God is calling you. मेरे पास आओ मेरा बेटा मेरा बेटी। Come to me, my dear son and और daughter. परमेश्वर बाहर बार जो कहता है, तुम्हारा जो समस्या है, तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हारा हर चीजों को मेरे पास लेके आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा बोझ उतार के तुम्हें विश्राम देंगे करके जो प्रभु बुला रहा है। And God is saying, no matter how big your problems are, bring all those who are heavy laden and heavy burdened, come to me and I will give you मैं rest. सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। I want to pray for you. ये मेरे परमेश्वर आपके धन्यवाद करते प्रभु। Lord, I thank you. आज के दिन के लिए धन्यवाद करते प्रभु। I thank you for this day. आज के दिन का आपको वचन के लिए धन्यवाद करते प्रभु। Thank you for the word that you have given us this प्रभु day. हमारे जीवन में बहुत चीजों के बारे में हम मनुष्य के ऊपर भरोसा करके काफी चीजों को हम लॉस किया होंगे। And there are many things that we have lost in this life. लेकिन परमेश्वर हमारा पुराना जीवन को छोड़ के नया जीवन बिताने की जाता हूँ। Lord, we want a new life and get rid of the old ones. जो आपको जो ना पसंद है, पुराना हर चीजों को हमारे जीवन से, हमारा सामने जो कलीसिया से, हमारे आपके ऊपर जो भी व्यक्ति विश्वास जो करता है, हर का जीवन से बाहर निकाल दीजिए। Lord, remove every unwanted old habits and old life that our people must be going through. Remove it from their lives. आपको पवित्र आत्मा को अंदर लेने के लिए कृपा कर लीजिए प्रभु। Have grace that everybody may receive your Holy Spirit. आपका पवित्र पुत्र को भेजने के लिए मदद कर लीजिए प्रभु। Help us to receive the Lord in their lives. आपको यीशु मसीह को अंदर लेने के लिए मदद कर लीजिए प्रभु। Help them to receive Jesus into their lives. आने वाले दिनों में हर क्षेत्र में सबके जीवन में आशीषों से बदल दीजिए प्रभु। Bless each one in the days to come. प्रभु आज सबके लिए मांग रहा है, जो जो चीज के लिए प्रार्थना जो करता है, Lord, आप सब देखता है, आपको मालूम है, लेकिन आप ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। Lord, you are aware of all the prayer requests, all the needs of your people, and you are a God who can fulfill it and provide for them. मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। You are a God who provides beyond what they ask for. सोचने से अच्छा देने वाला परमेश्वर है। You are the one who gives beyond our imagination. आज का दिन प्रभु, आज के दिन से सबका जीवन में कार्य कर लीजिए, इसके लिए आपको धन्यवाद करता है।
Lord, from this day, start doing something new in their lives. आपका नाम महिमा होने दो। Let your name be glorified. यीशु मसीह का दी पवित्र नाम से हम मांगते हैं। In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु आपको आज के जीवन से नया जीवन देने वाला परमेश्वर है, इसलिए विश्वास के साथ प्रभु को थाली बजा के धन्यवाद करेंगे। The Lord is a God who is going to give you a new life, and believe it, and let's give the Lord a mighty clap offering. Amen. We thank you so much for joining along with us this Sunday morning. We pray that the word of God has been a blessing to you today, for you and your families and your friends. And as we are concluding the service, we believe that you have been sharing with your families and friends. Let us join in prayer. हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। We'll do the final prayer. You can repeat this prayer after me. मेरे पीछे दोहराइए। तू मुझे सचमुच आशीष देता, आवाज उठाकर, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं ऐसे पीड़ित न रहूं। आमीन। आशीष लेंगे। नया जीवन देने के लिए जो पृथ्वी में आके लहू बहाके हमें बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, संसार को पर प्रेम से जीने के लिए जो सिखाने के लिए अपने एक ही लोटा पुत्र को दिया, पिता परमेश्वर का प्रेम चिन्ह चमत्कार करके पवित्र आत्मा से भरकर अभिषेक से भरने वाला पवित्र आत्मा का अभिषेक और हम सबके साथ हमेशा हमेशा बने रहेंगे। आमीन। आमीन। God bless you all. Thank you so much. परमेश्वर आज भी आपके जीवन में महान कार्य करेगा। आज का रविवार का दिन परमेश्वर आपके जीवन में, परिवार में, कलीसिया में और आशीष करे। God bless you all. Thank you so much for joining along. Be connected with our page, the Heart of Christ Ministries, the Heart of Christ Church, even our YouTube channel, the Heart of Christ Ministries. Continue to be updated of all the meetings जो भी हम वचन बांटते हैं, पासवान जो आराधना चलता है उसमें आप कनेक्टेड रहिए। हम विश्वास करते हैं आने वाले दिनों में प्रभु महान कार्य आपके जीवन में करेंगे। आमीन। लगातार अक्टूबर मंथ में भी हमारा मेंस मीटिंग, वुमेन्स मीटिंग रहेगा, यूथ मीटिंग, बाइबल स्टडीज चलता रहता है, हमारे जूम मीटिंग्स चलते रहते हैं। कृपया अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमें ये कमेंट्स में लिख सकते हैं, नहीं तो मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम आपको भी उस मीटिंग्स में ज्वाइन करें। आप भी परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं और परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। God bless you all. Have a wonderful Sunday.